نکال دیا گیا ہے ایک ایسے صحافی کو جسے بے تحاشا عزت بخشی ہے پاکستان کی عوام نے، اس کے ساتھ ایسا سلوک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ کیا حامد میر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے؟ آزادی ملے گی تو میں تمہارے چہروں کے نقاب نوچوں گا۔ اس نے ہمیشہ پاکستان کے اہم ترین دور میں پاکستان کو ہٹ کیا۔ اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی؟ سمجھ آ گئی ہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب اگر آئندہ کسی صحابی کے گھر میں گھس کے تم نے اس پر تشدد کیا، ہم بتائیں گے کہ تمہیں تمہاری بیوی نے گولی کیوں ماری۔ بس اتنا ہی بتانا تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیا حامد میر CIA اور را کا کارندہ ہے؟ کیا حامد میر موساد کا ایجنٹ ہے؟ کیا یہ گریٹر گیم ہے؟ کیا یہ بیرونی پلیئرز ہیں جو فوری طور پر اسد تور کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اتنی جلدی ISI پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ اتنی جلدی تو بھارتی میڈیا بھی پاکستان کے خلاف بکواس نہیں کرتا۔ کیا یہ ان لوگوں کی گیم ہے جو پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نہیں بننے دینا چاہتے؟ اب چند دن پہلے انکشاف ہوا کہ حامد میر کا ویریفائڈ فیس بک پیج جو کہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہے، اس کی کچھ ہی دیر بعد انڈین ایڈمن کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ حامد میر کے ڈیلیٹ کرنے سے پہلے حامد میر کے فیس بک پیج کی سکرین ریکارڈنگ اور سکرین شاٹ لیے جا چکے تھے، جبکہ کچھ ہی دیر بعد حامد میر نے پورا فیس بک پیج ہی ڈیلیٹ کر دیا۔ جبکہ حامد میر کا کہنا ہے کہ میں اب فیس بک پیج بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ فیس بک پر میرے نام سے فیک پیجز ہیں اور ان میں سے ایک تو فیس بک کی جانب سے ویریفائڈ بھی ہو چکا تھا، جبکہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حامد میر صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے، فیس بک کا پورا ایک پروسیس ہے جس کے بعد اکاؤنٹ ویریفائی ہوتا ہے۔ آپ کے اصل ڈاکومنٹس کے بغیر فیس بک پیج ویریفائی نہیں ہوتا۔ حامد میر کے والد وارث میر 1971 کی جنگ میں بھارتی میڈیا کے پروپیگنڈے اور جھوٹی کہانیوں کا منہ توڑ جواب دیتے رہے۔ وارث میر اس وقت نوائے وقت کے سابق ایڈیٹر ظہور عالم شہید کے ایک اخبار میں پاکستان اور پاک فوج کا بھرپور ساتھ دیا کرتے تھے۔ وارث میر کی وفات کے بعد حامد میر نے اپنے باپ کی جعلی دستاویز تیار کروا کر بنگلہ دیشی حکومت کو بھجوانا شروع کر دی، جن میں اپنے ہی باپ کو پاکستان کا غدار اور بنگلہ دیش کا حامی قرار دیا گیا تھا۔ حامد میر نے اپنے باپ کو غدار کہلوا کر وزیر اعظم حسینہ واجد سے ایوارڈ بھی لیا۔ حامد میر وہ شخص ہے جو بنگلہ دیش کے میڈیا پر یہ پروپیگنڈا کرتے نظر آئے کہ حسینہ واجد کی حکومت ان تمام جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی دے جنہوں نے 1971 کی جنگ میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ حامد میر کو اس وقت کتنی خوشی ہوئی ہوگی جب حسینہ واجد کی حکومت نے جھوٹے مقدمات بنا کر 70 سال کے بوڑھے بزرگوں کو پھانسی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ 2009 اور 2014 کے درمیان پاکستان میں خوارزین کی دہشت گردی عروج پر تھی۔ تب حامد میر کی کچھ ایسی کالز بھی پکڑی گئی جن میں وہ ان خارجی دہشت گردوں کو پاک فوج کی نقل و حرکت کے بارے میں خفیہ معلومات دیا کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں اورنگزیب کا آپریشن انہوں نے بند کرنا یا نہیں وہ کہتے ہیں بند نہیں کرنا تو ہم شمالی وزیرستان میں بھی چڑھائی کریں گے اور 40,000 فوج جو ہے وہ روانہ ہو جائے گی 1-2 دن۔ آپ لوگ پاکستان ایئر فورس کے اسکواڈرن لیڈر خالد خواجہ کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ خالد خواجہ کی مخبری کر کے ان کو TTP کے خوارزین سے شہید کروانے کا کام بھی حامد میر کا ہے۔ تو ان کی کوئی رپورٹ ہے خالد خواجہ وغیرہ کی؟ وہ کہتے ہیں کہ خالد خواجہ صاحب جو ہیں وہ کوئی اعظم آفریدی ہے، کوئی درہ خیل میں۔ اچھا، طارق افریدی اس کے پاس۔ ہاں، تو یہ مطلب کہ کیا گورنمنٹ کے ISI کے بندے ہیں اسپیشل یا
खालिद ख्वाजा कर्नल इमाम। खालिद ख्वाजा तो मेरा ख्याल ISI का बंदा नहीं, वो तो CIA का बंदा है, अमेरिकी CIA का बंदा है। और हैरत की बात है कि उसका रास्ता तालिबान की क़यादत से भी रहता है। हाँ, इधर तो पिछली दफा आया था, वो काफी से मिलके गया था कि मुला वगैरह तक से ना, क्योंकि ये तो मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का पता है कि खालिद ख्वाजा जो है वो उसका न सिर्फ ये कि अमेरिकी CIA से रास्ता है, बल्कि कादियानियों का एक बहुत बड़ा बैनुल अक़वामी नेटवर्क जो है उसमें एक आदमी है मंसूर इजाज, जो कि अमेरिकी है। हाँ, ये उसका फ्रंट मैन है। और एक दफा मंसूर इजाज को लेके खालिद ख्वाजा मेरे पास आया था और उसने मंसूर इजाज को कहा, मंसूर इजाज को लेके मेरे पास आया, उसके पास एक ब्रीफ केस था और खालिद ख्वाजा साहब ने मुझे कहा जी कि ये मंसूर इजाज साहब हैं और ये अमेरिकी हुकूमत के बहुत बड़े नुमाइंदे हैं, तो इनकी आप मुलाकात सैयद सलाहुद्दीन साहब से करवा दें जो हिज़्बुल मुजाहिदीन के सरबराह हैं, और ये उनके साथ मिलकर मसला कश्मीर हल करवा देंगे। तो मैंने इनसे पूछा जी कि ये इनके पास कौन सा सिंह है या ऐसा कौन सा जादू का चिराग है जो ये मसला कश्मीर हल करवा देंगे। तो उन्होंने कहा जी कि इनका जो है ना वो इंडियन गवर्नमेंट से भी रास्ता है और इनका वाजपेयी से भी रास्ता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने वो मुलाकात तो नहीं कराई, मैंने सलाहुद्दीन साहब से पूछा। सलाहुद्दीन साहब ने कहा जी कि ये आदमी जो है ये पैगामात भेज रहा है खालिद ख्वाजा कि आप जो है वो बराह रास्त इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ मुकम्मल करें, पाकिस्तान को बिजनेस से निकाल दें। हामिद मीर की इन एक्टिविटीज पर अदारे हामिद मीर के खिलाफ ठोस शवाहिद की बिना पर हामिद मीर को गिरफ्तार करने ही वाले थे कि राह ने हामिद मीर पर हमला कर दिया और हामिद मीर ने कहा कि मुझे 6 गोलियां लगी हैं और हामिद मीर ने हमले का इल्जाम ISI पर लगा दिया। ये भी कहा जाता है कि हामिद मीर ने झूठा हमला करवाया। अब इस बात का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट बॉक्स में बताएं कि किसी इंटेलिजेंस चीफ ऑफिसर के कहने पर हामिद मीर को 6 गोलियां मारी गई हों तो फिर हामिद मीर जिंदा कैसे बच गए। सबसे बड़ा हाथ जो है वो पाकिस्तान के मीडिया का रहेगा, हमारे मीडिया का रहेगा। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि काफी उनकी जनता एंटी मिलिट्री है, मिलिट्री के बरखिलाफ बहुत स्टेटमेंट्स आते हैं। कई एक जर्नलिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बाहर से पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो इस चीज को हमें और इनकरेजमेंट देना है। अगर उनकी जो पॉपुलेशन है वो और वॉइसिफोरस हो जाएगी, वो और पाकिस्तान चेहरे भी मुझे नजर आ रहे हैं जो माजी में असद तूर की तरह तशद्दुद का निशाना बने, उन पर हमले किए गए। हमने इसी तरह मुजाहरे किए, इसी जगह पे खड़े होकर मुजाहरे किए और मुकदमात दर्ज हुए, लेकिन कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। अब एक करेला ऊपर से नींद चढ़ा। अब हुआ ये है कि एक तरफ हमला किया गया है, हमले के बाद 3 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और दूसरी तरफ वजीर इत्तलात साहब जो है वो BBC को कह रहे हैं जनाब किस तरह के हमले तो होते रहते हैं। तो अब हमें जो है ना एक लाउड मैसेज देने की जरूरत है और मैसेज देने से पहले मैं आपके सामने एक एतराफ करना चाहता हूं और वो एतराफ ये है कि मुझे कुछ अरसे से ये लग रहा है कि हम जिन इदारों में काम करते हैं उन इदारों को चारों तरफ से घेरा डालकर इतना मजबूर कर दिया गया है कि वो हमें अपने साथियों की नौकरियों का वास्ता दे के कहते हैं कि यार ये बात ना करें, ये कर लें, ये ना करें, ये ना करें। तो हम अपने साथी जो है उनकी नौकरियों की खातिर थोड़ी एहतियात का मुजाहरा करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये अब स्ट्रेंथ बन गई है दुश्मन की जो हमारी आजादी साबित का दुश्मन है। लिहाजा मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पांवों की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आजादी मिलेगी। मुझे आजादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। ये आपको शायद लग रहा हो कि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है, मुझे कोई गुस्सा नहीं चढ़ा हुआ। गुस्सा इसलिए नहीं चढ़ा हुआ कि ये जो नौजवान मेरे साथ खड़ा है, पहले आपने इसको मारा, इसके घर में घुस के मारा और फिर आपने एक दूसरे को टेलीफोन कॉलें की और पर्सनल मीटिंग्स में कहा हमने घर में घुस के मारा। तो अगर तुम इतने बहादुर हो
तो घर में घुस के मारते हो, जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था। तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो, तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है, तो इसलिए वो समझता है कि मेरा पता नहीं चलेगा, मैं नामालूम हूं। तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हारा पता है हमें तुम कौन हो। ये जो तुमने एक असद तूर के बारे में प्रोपेगेंडा किया है कि जनाब लड़की का जो भाई था वो इसका भी भाई है। नहीं, लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। तो ये भी एक जल्दी आपको बता दिया कि और भी जनरल रानी है, उनका भी नाम बताएंगे हम। ये मैंने इसलिए बात किया कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया, पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया, जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असद तूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ। पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इसमें बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। तो इजराइल के मामले पर और इंडिया के मामले पर ये मीडिया जो है ये उस नैरेटिव पे खड़ा है जो पाकिस्तान के अवाम का नैरेटिव है, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का नैरेटिव है। हम उसी नैरेटिव पे खड़े रहेंगे। तुमने मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा और आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं, यास्मा शिराजी भी गद्दार है, फौजिया शाहिद भी गद्दार है, मुनीज़ जहांगीर भी गद्दार है, ताहिरा अब्दुल्ला भी गद्दार, हम सारे गद्दार हैं। क्योंकि आपके बाप दादा अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा था। तो जो मुनीज़ जहांगीर ने थोड़ी सी बात किया ना, मैंने उसको जरा थोड़ा आगे बढ़ा दिया है कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकी और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच।